हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 236 निर्वचन क्या है इस अध्याय के बारे में। इंटरप्रिटेशन क्या है इन दिस चैप्टर 236 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 206 236 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल बताता है इंटरप्रिटेशन के बारे में। इन दिस चैप्टर Constitution's Article 236 Interpretation. In this chapter, A. The expression district judge includes judge of a city civil court. क्या कहा जा रहा है? A. The expression district judge. The expression district judge includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge, assistant district judge and chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, session judge, additional sessions judge and assistant sessions judge। तो ये इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कितने प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके अंदर कितने प्रकार के जजेस हैं। तो बताया जा रहा है कि नंबर ए, द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions judge। B. The expression judicial service means a service consisting inclusively of persons intended to fill the post of district judge and the other civil judicial post inferior to the post of district judge। 237 article says 237 article says application of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates। 237 applications 237 article says application of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates। The governor may by public notification direct that the foregoing provisions of this chapter and any rules made thereunder shall be effect from such date as may be fixed by him in at all applied in relation to any class or classes of magistrates in the state as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the state subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification।
237 article says application of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates. The governor may by public notification direct that the foregoing provisions of the chapter and any rules made thereunder shall be the effect from such date as may be fixed by him in that behalf, apply in relation to any class or classes of magistrates in the state as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the state, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification. Part 7th. The state in Part B of the first schedule, Part 7. The states in the Part B of the first schedule repealed by the Constitution's 7th Amendment Act 1956, S29 and schedule. भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अनुसृत। अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 236 बताता है इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन के बारे में। इस अध्याय में नंबर का जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। व्याख्या की जा रही है इंटरप्रिटेशन न्यायाधीशों के बारे में। जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत, जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत कितने प्रकार के जजेस? नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश हैं। नंबर खा, न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अन्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आश्रित है। अनुच्छेद 237 बताता है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से जो वे इस निमित्त नियत करे, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल मैं पढ़ूंगी नया अनुच्छेद। तो ठीक है, मैं अभी नए अनुच्छेद के साथ में आ रही हूँ। ओके, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।